کچھ عرصے کے لیے پوسٹ پون کرنا پڑا. اس وقت ہم موجود ہیں اسرائیلم مین جی روڈ پہ اور آج ہمارا یہ دوبارہ سیر و تفریح کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شمول مرزا صاحب. آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج یہ پروگرام انہیں ٹور کا رکھا ہے اور یہ کس طرف جا رہے ہیں. جی مرزا جا رہے ہیں بڑے دنوں کے بعد ہمارا کا پروگرام ہوگا ہمارا اور اس کا تاریخی مقامات بھی ہم سیر کریں گے. تمام بندوں سے اور خاص بات یہ ہے کہ ہم جائیں گے آپ کو بہت سارا ہمارے وہ جگہ خاص قلعے کے بارے میں مکمل طور پہ کریں گے اور کام کریں گے. اچھا میرے ساتھ یہ جو خاص کا پیکیج آپ کے لیے ماسک یوز کر رہے ہیں اس کے بعد سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں یوز کر رہے ہیں آیا ہے ٹوٹل اخراجات 1200 روپئے کا اور نیکسٹ پر جو ہمارا جو جا رہا ہے اس کو بھی میں بتاؤں گا لیکن وہاں ہم نے بالکل بھی بہت شکریہ مرزا صاحب. ناظرین مرزا صاحب نے آپ کو مکمل طور پہ پیکج بتا دیا قلعہ ارطاس کا, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارا پیج لائک کر سکتے ہیں اور ہمیں ان لوگوں کو میسج کر سکتے ہیں اور نیکسٹ پر بھی آپ ان سے معلومات لے سکتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, مزید ویڈیوز اور سیر و تفریح ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ناظرین ہمارا عالمگیر ٹورزم کا جو گروپ ہے ابھی روانگی کے لیے تیار ہے, روانہ ہو رہے ہیں دوست گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں. ان میں ہمارے ساتھ ہیں بزرگ ہمارے سرپرست اعلیٰ تحصیل پریس کلب رجسٹر راجہ محمد انور صاحب, پریزیڈنٹ تحصیل پریس کلب مرزا شاہد سنجم صاحب, وائس چیئرمین محمد ظہور چودھری صاحب ہیں تحصیل پریس کلب رجسٹر کے, راجہ امجد صاحب ہیں یہ ممبر ہے تحصیل پریس کلب کے, حاجی اکرام صاحب ہیں, شیخ صاحب ہیں ہمارے نائب صدر ہیں انجمن بہبود فریضہ کے, شہزاد حسین والا صاحب ہیں, ذوالفقار علی ہیں, حکیم عمران صاحب ہیں اور میڈیا ٹیم میں شامل ہمارے ہیں جبران صاحب, تاشفین اختر ہیں, اویس صابر ہیں. تو ناظرین ابھی ہم روانہ ہو رہے ہیں. بڑا پیارا موڈ ہے ہمارے دوستوں کا. یہ اسرائیلمگیر بازار سے ہم روانہ ہو رہے ہیں. یہ بائیں طرف ہمارا جو ہے نا بازار ہے جو اسپیشل گورنمنٹ نے لگایا ہے, بڑے فریش موڈ میں, اور گاڑی کے اندر بھی ہمارا جو عالمگیر ٹورزم کا میوزک ہے وہ لگا ہوا ہے اور سارے جمرے ہیں. ٹھیک ہے جی, خصوصاً ابراہیم مرزا صاحب. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا ایک خاص قسم کا میوزک ہے جو ٹورس کے لیے ہم نے بنایا ہے. اور جب بھی ہم نکلتے ہیں ایک تو وہ میوزک سنتے رہتے ہیں, گاڑی میں میوزک چلتا رہتا ہے, دوسرا ہم کوئی بھی رپورٹ بناتے ہیں تو اس میں کوئی میوزک ہم چلاتے ہیں. یہ بھی ہم اسرائیلمگیر سے نکلے ہیں, دریائے جہلم کراس کر رہے ہیں. یہ دریائے جہلم کا پل ہے, پانی ہے کافی, دیکھ سکتے ہیں لیفٹ میں ڈاؤن اسٹریم ہے. یہ آپ پل کراس کرنے لگے ہیں, زیادہ موڑ پہ پہنچے ہیں ابھی, بہت جلدی انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. لیفٹ سائڈ پہ ہمارے یہ کالج کی عمارت ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم چلتے جائیں گے. پھر بھی آپ کو ہم لے آئے ہیں یہ جو روہتاس کی طرف ہو جاتی ہے نا, تیلنا سے پیچھے لیفٹ سائڈ پہ ملتی ہے جو اس کو منگلا چوک بھی کہتے ہیں. اس روڈ پہ ہم آ گئے اور اس کے روڈ پہ جا رہے ہیں. یہ روہتاس قلعہ ڈائریکٹ جاتی ہے روڈ. ٹھیک ہے جی, یہ روہتاس سے پہلے ایک پل آتا ہے, بہت بڑا نالا تھا کسی دور میں. یہ
ये आप दीवारें देख सकते हैं, हम करीब पहुंच गए हैं रोहतास किला के, ये बिल्कुल हम इंट्रेस्ट के करीब पहुंच गए हैं और कोशिश करेंगे तो थोड़ी देर रुकेंगे क्योंकि इंट्रेस्ट पे ये भी हम इन हो रहे हैं। ये भी हम गेट से इंटर हो रहे हैं, रोहतास किले का मेन गेट है, और उसके बाद गाड़ी पार्क करेंगे और हम मिलेंगे राशिद मुगल साहब हैं हमारे इधर, एक दोस्त हैं, उनके वालिद हैं, वो हमें किले के बारे में बताएंगे और वो तारीख जो है ना वो किले की मुकम्मल हमें ब्रीफ करेंगे पूरे ग्रुप को। तो आइए चलते हैं उनके पास और हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो युवराज साहब उनके पास ले चलेंगे। हम मौजूद हैं किला रोहतास के अंदर और तमाम दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ एक दोस्त यहाँ से गुलाम इरशाद साहब हैं, जो गुलाम इरशाद मुगल साहब हैं, जो इस किले की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, वो हमें इसके बारे में मज़ीद ब्रीफ करें। जी इरशाद साहब। ये किला रोहतास 1541 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने एक शाहकार बनाया 1541, यानी इसको बने हुए तकरीबन 500 साल ये आपके सामने आज इसकी तारीख वो गिर चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत यानी 1/4 ऐसे गिरा है 3/4 और सिर्फ ट्रावल कैंप है, ट्रावल कैंप है, गैरिजन फोर्ट है, ये रिहायशी किला नहीं है जैसा लाहौर अटक या पेशावर में जो है ना रिहायशी किला जो उसने फौज रखने के लिए बनाया था, क्योंकि इसकी सराउंडिंग्स में ना आज भी तकरीबन 60-70 किलोमीटर समझ जो रेडियस है, वहाँ एक ही कौम रहती है दखड़ के यानी वो शुरू से ही फ्रॉम वेरी बिगिनिंग मुगलों के साथ उन्होंने बड़े वफाद हासिल किए मुगल, और आपको पता है मुगलों की हुकूमत सारी आई रही है, औरंगजेब आलमगीर तक मुगल रहे और मुगलों की तामीरात मुगलों की लेकिन शेर शाह भी अपने ज़माने का बेहतरीन माहिर तामीरात यही गलत देखी कि उस ज़माने में उसने मुगलों में से नहीं। नो शेर शाह सूरी अफगान पठान था, असल नाम इसका फरीद खान, अफगानिस्तान का रहने वाला था, भारत का नाम था पसंद, फिर से शेर मारा, सब शेर मारा, बाबर की फौज में सिंपल सोल्जर, बाबर की फौज में सिंपल सोल्जर था और इसने शेर मारा, जा रहा था खंजर के साथ, सामने शेर आ गया, इसने अपने खंजर के साथ उसका साथ किया, तो उस दिन से फिर इसको शेर खान कहेंगे, वही अब दिन शेर शाह शाह मीन किंग, ये सैयद नहीं है, he was not सैयद, he was not शाह, यानी शाह मीन सरदार, इस वजह से शेर शाह सूरी के लिए। सूर की भी मैंने वजह पड़ी है कि पठान लोग जो होते हैं सूर या तो गांव का नाम होगा, गांव के नाम पे जैसे हयात मोहम्मद खान शेर पाओ, आपने नाम सुना होगा पेशावर में, शेर पाओ गाँव है, कोई ज़ात कौम नहीं है। इसी तरह मेरे ख्याल में ये सूर भी इसका कोई या तो गांव होगा या सूर इसका कोई कबीला होगा, सूरमा यानी बहादुर लोग होंगे, क्योंकि जब पठान का बच्चा पैदा ही होता है तो उसे वो घुड़सवारी और ये नेज़ाबाजी और बंदूक चलाना वाला सिखाते, ये भी तब इसका नाम दिया, तो ये है शेर शाह। ये बेसिकली अफगानिस्तान का था, इसका वालिद था हसन खान, उसको जहांगीर मिली थी, उस वक्त सारा सब कॉन्टिनेंट था, बड़े सगीर था पाकिस्तान को बनाने, पाकिस्तान तो कल की बात है सर, मैं 500 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1541 में ये 1541 और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रावल कैंप और गैरिजन फोर्ट यहाँ फौज रहती है, मगर अफसोस कि शेर शाह जिंदा था, ये पढ़ रहा था, मगर उसकी डेथ हो गई, ये किले की तामीर के दौरान ही उसकी डेथ हुई है, उधर वो सारा सब कॉन्टिनेंट उधर सूबा बिहार में थी, सहसराम एक जगह, सहसराम जो इनकी जागीर थी, इसके वालिद को मिली थी हसन खान, ये वहाँ पैदा हुआ, लेकिन बेसिकली इसका जो वालिद था ये वॉज फ्रॉम अफगानिस्तान, ये माइग्रेशन हिजरत कर गए थे, वो ज़माने में अफगानिस्तान भी इनके साथ शामिल और पुराना अच्छा ये जो जीटी रोड है जो जनरल जीटी रोड मौजूद थी सर, जो रोड के जाल हैं जो जी बिछाई ये एग्जिस्ट करती थी, कच्ची सड़क थी फ्रॉम काबुल टू दिल्ली, उसकी जो रिपेयर करवाई है थोड़ी मुरब्बी और इसकी जिसने बनवाई नहीं है, पहले एग्जिस्ट करती थी, मौजूद थी, खच्चर हाथी वगैरह उससे जुड़े थे, उसकी मुरम्मती करवाई, जैसे मैंने पहले गुजारिश की है कि आप 10 मिनट के फासले दूसरे को चेक पोस्ट बना दी, चेक पोस्ट बना दी, बावड़ी बनाई, पानी का इंतजाम किया, सराएँ बनवाई और वहाँ पर बाकायदा घोड़ा खड़ा होता था, जो मैंने पढ़ा था में घोड़े की पुष्ट के ऊपर जात का थैला रखे, इस तरह विदिन 2 डेज। बावली कितनी है या 3 बावली इन दिस फोर्ट, बड़ी बावली ये साथ आप नीचे तशरीफ ले जाएंगे तो खूबसूरत बावली है, नीचे जाने के तकरीबन 148 सीढ़ी है, तो आपको पानी मिला, ये जो है ये फौज के लिए
देखिए इसके दो हिस्से, ये जरा निगाह डालें, यहाँ आपको दीवार नजर आएगी, वो सामने देखिए दीवार पूरी भाई सर इस साइड में ये शाही वीडियोस के अंदर आ जाओगे। काम करता था जब तक ज्यादा टाइम या रहता नहीं, जब गठबड़ों ने कोई ऐसा काम किया, कोई शोरश कपा की, बस फिर उसकी फौज पहुंच जाती, या कोई मौसमी हालात ऐसे हो गए 6 माह के लिए 4 माह के लिए उसकी फौज न रुकी, फिर दोबारा ये है ये मतलब सिर्फ टैलेंट कैंपर इसी वजह में। हाँ, और कोई आप क्वेश्चन जवाब इतना खूबसूरत और इतनी चीजें जो दिखाई हुई है, ये पाकिस्तान की बहुत बिल्कुल तो है, लेकिन यहाँ के लोगों ने जो मुझे किए पहले भी एक दो आदमी पहले भी थे, आप लोग जब से परवेज मुशर्रफ ने ये मेहरबानी करवाई है, मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा, उसने मेहरबानी करवाई या विकास आया भी उसी ने ये पुल मंजूर किया, और कुछ चौधरी फरक अल्ताफ और अल्ताफ हुसैन गवर्नर की भी इसमें एफर्ट्स काफ़ी हैं, क्योंकि ममलोट वाला पुल पहले बना, उसका इफ्तिताह करने के बाद सॉरी कि मैं बात कर रहा हूँ जो इन्होंने इंक्रोच किया हुआ है, जो कब्जे किए हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये ज़मीन तो है आपके किला की आर्कियोलॉजी की, और ये जो इंचार्ज है वो है टूरिज्म का, सेक्रेटरी टूरिज्म किया है, तो वहाँ जो है रेड यहीं से लिखा गया है कि जो आबादी है उन्होंने नाजायज़ कब्जा किया, उसके लिए कोई एक्शन लिया है? बिल्कुल सब लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, इसी के आज आज पुराने बैठे जो हिस्ट्री है ये 60 या 70 या 80 या 200 या 400 उनको शेयर करते हैं, बाकी लोगों ने देखा देखी जिसके इलाके से लोग माइग्रेशन करा यहाँ ये जुल्म हुआ। और आप यकीन जाने पंजाबी में कहते हैं चौरा में चौरानों को जाते हैं, तो ये हिसाब है कि क्या कि मेरे पहले मकान उस खेतों में बस मेरे भी खाना हमें मेरे वालदैन मेरे नाना दादा पता पानी मरने के ऊपर जितने तो हमारे देखती है पानी मर, लेकिन इन्होंने बस कुछ न कुछ किनारे के हिसाब से जगह जो है काबू की है, और यही लोग हमारे लिए दर्द साथ तो मेरे साथ जब शेरशाह का डिक्लाइन हुआ, जब खात्मा हुआ, जब उसमें तो वो कितना अर्सा सारा करने का कितने अर्से के बाद उस पर डिक्लाइन शुरू हुआ ये सारा? ये सर शेरशाह तो बहुत होगा 1545 उसकी जो रेनिंग पीरियड है ना, हुकूमत सिर्फ 5 साल, उसके बाद उसके बेटे आए तक तनशीन हुए, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं, सच्ची बात कमज़ोर था मुगलों, तो मुगलों ने कोई दिलचस्पी इस पर नहीं दी, क्योंकि ये मुगलों के खिलाफ था। हाँ गिराया नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत गिराया मुगलों ने, अमानी ने आर्डर दिया, बाबर ने भी आर्डर दिया, वो सामने आप तशरीफ जाएगी, वो एक नए बने हुए हैं, वो देखिए पैटर्न बीच में आपको नजर आ रही है, वो किंगरे से वो बाद में बस थोड़ा बहुत उसने ध्यान किया, बाकी कोई दिलचस्पी नहीं के खिलाफ लगा, और यहाँ पहुँचना ही बड़ा मुश्किल था सर, इसकी जो बर्बादी हुई है, और जो आप बता रहे हैं बात क्यों लोग यहाँ से माइग्रेशन करके बाहर से इधर आ गए, कि बर्बादी हो गई इससे, कोई पूछने वाला नहीं, बस पूछने वाला नहीं था, बाहर से लोग माइग्रेशन करके आ गए, अब अच्छा खासा गाँव 500 घर पे मुश्किल है, 500 घर पे मुश्किल है, और तकरीबन 5-9 हज़ार की आबादी इसके अंदर, और फिर गवर्नमेंट देखी, गवर्नमेंट हर चीज़ इनको प्रोवाइड कर रही है, एवरी फैसिलिटी इनको, स्कूल है 4 स्कूल हैं, या टेलीफोन एक्सचेंज है, रिपेयरिंग के वाले से जी बिल्कुल बड़ा कुछ कर रही है, ये देखें लगी ऊपर ये तहसील वगैरह की है, ये आप की है, बिल्कुल आप भी बना रहे हैं, थोड़ा बहुत करना ये प्रेजेंट के बारे में तो पास जो है इसका उसके बारे में ब्रीफली बताएं कि क्या क्या जब दोबारा मुगल आए उन्होंने इस पर इंटरेस्ट किया, उनका डिक्लाइन की गुजारिश, ये वो उनका खात्मा किस तरह हुआ, किसने किया, और ये सारा कुछ जो है धर्म पर सर लोगों की बात सिखों ने भी इसको करवा, सिखों का अपना यानी कि जो है द्वारा उन्होंने भी इसको काफी करवा सिखों। अच्छा मौलवी साहब ये जो नो बाबर की फौज में सिंपल के बाद हुमायूं आया, हाँ ठीक है, सिंपल सोल्जर था, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी उसकी उसमें ये था कि जो हुमायूं था उसी
اسی کے ساتھ اس کی جنگ بھی ہوئی. بالکل جنگ ہوئی. ایک نہیں تھی 2-3 جنگیں ہوئی. شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہرایا تھا جی اور ہمایوں صاحب بھاگ کے ایران چلے چلا گئے. گیا. بالکل ٹھیک. اور وہاں پہ اس نے اپنی کئی سال لگا کر فوج تیار کی. جی اور جب اس نے اس قلعے پہ حملہ کیا جی اور یہ محرم ہے جو اس سائڈ پہ آنا تھی, اس سائڈ پہ اس نے توپیں لگائی تھی, جی اس پہ اس نے حملہ کیا. لیکن اس سے پہلے کئی عرصہ پہلے شیر شاہ سوری فوت ہوتا, وہ بھی بہار میں ترکان میں بم بلاسٹ کرتے ہوئے زخمی ہوا. جی. اس دوران اس کی اسی علاقے میں جی جی ایسی. تو پھر جب حملہ ہوا اس پہ تو اس وقت کوئی تخت نشین نہیں تھا, اس کے بچے آپس میں لڑتے تھے. جی. اس کی وجہ سے سب سے جو بربادی گورنر یہاں سر ہاں. آپ کی بات کا انہوں نے قائم کیا ہوا تھا, گورنر بھی تھا, وہ بھی بھاگ گیا جب انہوں نے سنا کہ یہ میں آپ مغل آ سے گئے. اس کی تھوڑی سی شیئر ٹھیک ہے, باقی یہ بالکل یہی ٹھیک ہے, آپ کی history بات بالکل ٹھیک. کیونکہ شیر شاہ سوری کو اتنا ٹائم ملا ہی نہیں. ملا ہی نہیں. یہی افسوس ہے کہ اس کو ٹائم نہیں ملا. یہ مکمل بعد میں اس کے بیٹے نے کی ہے. بڑی بات. اور اس زمانے کا کچھ کہتے ہیں 22 کروڑ روپیہ خرچ ہوا, کچھ اور یہ لوگ کہتے ہیں کافی اس میں فقیر ہے اور کافی جانے بھی یہاں سے آیا ہوا. بہادر آدمی کا اللہ والا اس زمانے میں اللہ والا بڑی کی جاتی ہے. تو اس کا نام جیسے کہ آپ کے سامنے ہوتا ہے شاہ جہاں, یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں شاہ جہاں. یہ زمانے میں زندہ تھے اور فوج کی جو ریکوائرمنٹ تھی پانی وغیرہ پلانا پڑا ہے کہ سے پانی کی جو مزدور کی حرکت ہے وہ پانی پلانے کے شاہ جہاں. یہ سامنے اچھا اس کا میوزیم ہے. جی یہ اوپر اس کی میوزیم ہے, اسی کے اوپر میوزیم ہے, لیکن افسوس کہ تقریباً 3 سال ہوئے بند ہے. میں میوزیم میں ہی ہوتا ہوں لیکن میوزیم میں کچھ اس کی اور میوزیم میں جمیز آپ سے بنا کے رکھی ہے. جمیز آپ شیر شاہ سوری اور اس کی بیوی لاڈو برکا کی کچھ قرآن مجید ہمیں ملے ہاتھوں سے لکھے ہوئے, ہاتھوں سے ہینڈ ریٹنگ, وہ ہم نے رکھے ہوئے. کچھ سکے ہیں مغلیہ دور کے اور وہ ہم نے کوئی بڑی مہربانی آپ تشریف لائے, بڑی خوشی ہوئی آپ سب سے بات کر. میں ادھر ہی ساتھ دعا ہو رہی ہے, 7 گھنٹے کے بعد میں واپس آ جاؤں گا, پھر میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. راشد مغل صاحب کی بریفنگ کے بعد راجہ محمد انور صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس کے بعد مرزا صاحب نے ہماری حوصلہ افزائی کی. مرزا شاہد انجم آپ صاحب کیا نے سمجھتے ہیں کہ کیسا رہا آپ کا ٹور, اور یہ آپ کا پہلا تجربہ تھا یا اس سے پہلے بھی آپ دوستوں کے ساتھ مل کے اس طرح کی جو ہے پارٹیسپیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہایت ہی شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا جنہوں نے یہ پارٹی ارینج کی ہے اور بڑے ہسٹوریکل جگہ پہ لے کے آئے ہیں. ہمیں اپنی ہسٹری کا پتہ نہیں ہوتا, تو میں شکر گزار ہوں کہ ہسٹری کے متعلق ہمیں پتہ چلا ہے. بڑا خوبصورت قلعہ ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ایسے آپ وزٹ کروایا کریں اور سب دوست میں مل کے اس کو اس کی مل کے پارٹیسپیشن میں حصہ لیا کریں اور دیکھا کریں کہ ہمارے آباء و اجداد یا اس سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں انہوں نے کیا کام کیا ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ ہمت دے کہ ہم بھی ایسے کام کیا کریں. تھینک یو, بہت شکریہ راج صاحب. مرزا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ آج کے اس ٹورس کے حوالے سے ہمارے ساتھ آئے ہیں, تو اس طرح کے جو ہیں وہ ٹورس ہونے چاہیے خاص کر ہسٹوریکل پلیسز کے؟ جی عمران صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا اور عالمگیر اسٹور اینڈ آپریٹس کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں اپرچونیٹی یہ دی. اس ہسٹوریکل پلیس پہ آنے کا میں سب سے بڑی آپ مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے آلموسٹ پورا یورپ گھوما ہوا ہے, بائی روڈ گیا ہوا ہوں سارا, لیکن فرسٹ ٹائم میں یہاں پہ قلعہ روہتاس آپ لوگوں کی وساطت سے آیا ہوں اور بہت عرصے سے یہ سنا جا رہا تھا. بہت پورے پاکستان سے, نہ صرف پاکستان سے بلکہ باہر سے جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ اسپیشلی اس جگہ کا وزٹ کرتے ہیں. مغلیہ دور کا یہ ایک بہت بڑا ایک شاہکار ہے اور اس پہ لوگ وزٹ کرتے ہیں. ہم بھی آئے ہیں. میں اسپیشلی آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا
आलमगीर टूर एंड ऑपरेट्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया, और उम्मीद है कि आइंदा भी इस तरह के टूर अरेंज करते रहेंगे और सारे दोस्त इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू। ठीक है, बहुत इससे पहले कि हम निकलते मुख्तलिफ एरिए में, दोस्तों ने कहा जी खाना तैयार है, पहले खाना खा लें। तो ड्यूटी लगी हुई थी उधर, सारी को जिम्मेदारी ली थी हमारे जो यूनान से आए हैं दोस्त मोहम्मद ज़फ़र चौधरी साहब, उन्होंने जनाब बेहतरीन सिस्टम किया हुआ था, साथ चूल्हे शुल्हे हमारे साथ थे, अभी आप देख रहे हैं। नाजरीन, हमने अपने मालूमाती सफ़र का आगाज़ किस्सा खानी गेट से किया, ये मेन गेट के साथ था, और किस्सा खानी गेट के बाद हम गए जनाब सुहेल गेट, जो एंड पे जो है ना वो गेट है सुहेल गेट। इसके बाद हम फिर जो बावली है एक हमारी बड़ी लेफ़्ट साइड पे नीचे वाली सबसे बड़ी बावली है, इसकी बावली की तरफ हम निकल पड़े। ये ज़रूरी सब दोस्तों की ख्वाहिश कि बावली देखनी है, बाकी बावली जितनी भी हैं वो उनमें तो घास फूस ज़्यादा है, वो देखने के काबिल नहीं है, लेकिन ये साफ़ थी और बेहतरीन थी और ऐबी गहरी थी, इसलिए दोस्तों ने कहा हम देखते हैं। ये जनाब बावली है, ये सबसे बड़ी बावली है, 3 बावलियाँ हैं इस किले में, और सबसे बड़ी बावली है, इसकी 148 सीढ़ियाँ हैं। और सबसे ख़ास बात कि जो हमारे साथ हैं मिर्ज़ा शाहिद अंजुम साहब, डॉक्टर साहब ने उनको मना किया हुआ है, वो हार्ट पेशेंट है, और उनको मना किया हुआ है कि आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, और मिर्ज़ा साहब हमारे साथ हैं, वो लीड कर रहे हैं और सीढ़ियाँ उतर भी रहे हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़ेंगे भी, ठीक है, और हमारे पूरे टूर में वो सबसे आगे रहे हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी जगह है, और आप भी अगर ख्वाहिश रखते हैं तो नेक्स्ट हमारे टूर में शामिल हूँ और हमारे साथ चलें, हम आपको ऐसी बेहतरीन और भी जगहों पे लेके जाएंगे। अभी देख लें जी, हमारा कैमरामैन जो है वो ताशफीन नीचे वेट कर रहा है हमारा, तो सबसे पहले हमने उसे भेजा है कि जल्दी जाके जी आप उधर खड़े। अभी हम जा रहे हैं जनाब जो है ना रानी माल की तरफ, ये सामने रानी माल है, ये किसी दौर में रानी इधर आती थी और इधर ऊपर चढ़ के फिर नज़ारा करती थी पूरे फौज का, पूरे इलाके का। ये रानी माल है जनाब, ग्रिल लगाई हुई गवर्नमेंट ने, और लोग ऊपर जाते हैं, जिब्रान साहब चले गए हैं, जौहर साहब हमारे ऊपर गए हैं, और ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे नीचे गान नाला आ रहा है, और ये हमारे गेट हैं, इस किले के ये गेट हैं जो टूटे हुए हैं, ठीक है जी, आपको दिखा रहे हैं हम। साथ ही हम ये अभी फांसी घाट की तरफ जाने वाले हैं जी। ये भी आप देख रहे हैं, ये ट्रैक बने हुए हैं, उस वक्त तो जंगी साजो सामान के लिए थे, लेकिन अब विजिटर के लिए बने हुए हैं। ये हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाकर हम आपको ना बैक साइड पे किले की बुनियाद दिखाते हैं, बुनियाद दिखाते हैं आपको कि उस वक्त के इंजीनियर ने बुनियाद कैसे बनाई थी। ये जी किला की भाई की तरफ का नज़ारा है, देखिए ये बुनियाद है, अब देखें कि किधर से शुरू हुई है बुनियाद और किधर तक आई है, और उसके बाद अभी आपको आईडी दिखाएंगे कि किले की एक तरफ की एक बॉडी का प्यारी सी दीवार बनी हुई है, वो हम आपको दिखाएंगे कि कितनी प्यारी दीवार बनी हुई है, कितनी मजबूत उस वक्त के, ये आप फूल देख रहे हैं कि उस वक्त के इंजीनियर इधर कलमकारी दिखाई है, ये आप देख सकते हैं कितनी मजबूत दीवारें। आजकल तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, ना कोई इंजीनियर ऐसा बना सकता है, तो ना ही किसी के पास इतना वक्त है कि ये इतनी ईंटें इतने पत्थर इकट्ठे करेगा फिर इतनी मोटी मोटी दीवारें बनाएगा। तो अभी बाहर का नज़ारा भी देख रहे हैं, आस्ते आस्ते हम आपको लेके चलेंगे मेन गेट की तरफ, बिल्कुल ये सारे साथी जा रहे हैं, आप देख रहे हैं ये ट्रैक है, और भी काफ़ी विजिटर आए हुए हैं मंडी पावरदीद से, किलौर से। नाजरीन, उसके बाद हमने रुख किया फिर सराय आलमगीर का, शाम के 5 बज चुके हैं, और हमने रुख किया अभी सराय आलमगीर का, वापसी आ रहे हैं, और बड़े जोशो खरोश से जनाब उसी तरह चेहरे हैं सारे दोस्तों पे जिस तरह जाते हुए आपने देखा था, और बल्कि उससे ज़्यादा खुश हैं, कोई थका हुआ तो नहीं लग रहा, बिल्कुल जनाब शेख साहब थोड़े थके हुए लग रहे हैं। तो नाजरीन, इंशाअल्लाह अगले टूर तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।